Dear student, today we will learn one feature in Windows 10 which is known as Continuum. Alright, what this feature says is that we can use Windows in a device, okay, which support touch input. Okay, so when we will on this feature of Continuum, so it can work without the use of keyboard and mouse. Okay, it should have a touch screen. So for example, if I want to convert this window into Continuum feature, means it will be switched to the tablet mode. So what will I do? I will click over here in the action center icon, and here you will see tablet mode. Okay, so just click on this and you will see here. So now very few icons are on the taskbar. Alright, and this is becoming now switched to the tablet mode. Okay, so if my laptop screen supports the touch, is just like if it behaves like the touch screen, so I will be able to open it with the help of my finger, as we just touch in our mobile. So I can click here with my finger and it will open. Okay, but my laptop screen doesn't support a touch behavior, so I am not able to do that. So this feature works basically on those devices where the screens support the touch functionality. Alright, so this feature is not useful for me, so I am just coming back to the normal mode. So again, moving to the action center and clicking on the tablet mode, we are coming back. Okay, so this is the Continuum feature. Apart from this, I have already told you in one of my previous video of the task view, from the use of task view, from where we can create multiple desktops. So if you wish, you can see that video. Okay, and you will understand how we can create multiple desktops or virtual desktops. Okay, about Microsoft Edge I have already explained you in the previous classes that it is a browser and it support various other new features like the Cortana integrations is integrated into this. Alright, so you can also search for that, and if it is not clear, I will tell you more on that. Today I will tell you one another feature which is inside the control panel. Okay, control panel, if I want to change something, I will have to move to control panel. For that, I will have to click here and I will write CO, and you will see control panel is appears here automatically. So I will click here and this control panel opens up here. Okay, so how can I use this control panel? Okay, I can change various settings from here. Suppose I want to change the date and time. How will I do that? Look here, date and time will be there. So here is the date and time. Right now the date and time is this one. Okay, Sunday 12 July, and the timing is around 1 p.m. So just go to the date and time, click on it and change date and time. So we will click over here. I can change the date, or even I can change the month. So just click there. Even I can change the year. Click here. So you can see I can select any year. I select 2021, October 6th. Timing I can change from here. Suppose I can put it as 10, 17, 1. Instead of PM, I will click AM. Okay, and click on OK. So you can see here 10:17 AM, and the date is this one, 21. Okay, 2021, 10th of October, 6th of October. Alright, so now we are setting it back again. So दोबारा से इसको बैक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Change date and time पे we will click, or click here, then you will have to click here, select 2020, select July, select 12, click on
and change the time from here. Timing is 1:17 and PM. Okay, so now you can see the date and time has changed. Okay, so now click on OK. Okay, so by this way we can use the date and time functionality. All right, the another feature is fonts. Fonts you have all have used in Microsoft Word. If I will search here Word, okay, Word, I have opened Word. So Word is here. So if you want to change the font, you can see here right now Times New Roman font is present, which is selected. So if I write hi there, so this is coming in the Times New Roman font. If I want to change the font, I can change, suppose Arial Black. So if I will type now hi there, so you can see the font has changed from here. Okay, from here. Now if I want to add a new font, okay, if I want to add a new font, how will I do that? कैसे करूँगा मैं उसको? मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा कोई फ़ॉन्ट जो मैं डाउनलोड करूँ इंटरनेट से वो यहाँ पे आ जाए और मैं उस फ़ॉन्ट को यूज़ करूँ, तो हाउ विल आई डू दैट? For that setting you need to go to the font here. Okay, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस font folder पे क्लिक करो and you will see all fonts are present here. यहाँ पे सारे के सारे font अवेलेबल हैं. Arial जो हम यूज़ करते हैं, Times New Roman भी यहीं पे पड़ा होगा if you will search it. So you can see Times New Roman is present here. ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे हमारा फॉन्ट यहाँ पे प्रेजेंट हैं. सो इफ़ आई वांट टू यूज़ माय पर्टिकुलर फॉन्ट, तो मेरे को यहाँ पे वो फॉन्ट पेस्ट करना पड़ेगा और वो फिर मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फ़ॉन्ट को हमें डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट के थ्रू. सो मैंने एक फ़ॉन्ट डाउनलोड किया था, आई थिंक डिलीट हो गया है मुझसे. दिस इज़ द फॉन्ट रीस्टोर. हाँ, तो ये मैंने उस फॉन्ट को रिसाइकल बिन से वापसी भेज दिया है. ओके, सो इट इज़ हेयर. ओके, लॉन्ग आइलैंड इज़ द फॉन्ट जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था. सो व्हाट विल आई नीड टू डू, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड देन एक्सट्रैक्ट टू लॉन्ग आइलैंड. मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया. ओके, तो ये यहाँ पर फोल्डर के अंदर आ गया. डबल क्लिक ऑन इट. ओके, ये है इसकी जो हमारे फ़ॉन्ट का एक्सटेंशन होता है, दैट इज़ TTF फाइल. ठीक है, ट्रू टाइप फ़ॉन्ट होता है. तो हम बस इस वाली फ़ाइल को कॉपी करेंगे और इसको हम कॉपी कर देंगे यहाँ पे, जहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट है कंट्रोल पैनल के अंदर फ़ॉन्ट, उसके अंदर अपना फ़ॉन्ट पेस्ट कर देंगे. ऑलराइट, तो ये पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा. अब आप यहाँ पे देखो मिल जाएगा आपको. दिस इज़ द हेयर लॉन्ग आइलैंड. ओके, ये मिल गया हमको. तो अब हमें ये चाहिए, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो इट शुड बी अवेलेबल नाउ इन एवरीवेयर. मीन्स यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये वाला फ़ॉन्ट. तो मैं देखूँगा यहाँ पे नीचे आके BCDEFGHIG लॉन्ग आइलैंड, ये मेरे को मिल गया. सो नाउ आई सेलेक्टेड दिस एंड हाई देयर. ओके, सो बाय दिस वे वी कैन यूज़ द फॉन्ट्स. ठीक है, हम इस तरीके से फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं. नाउ अगर मुझे इस फॉन्ट को डिलीट करना है तो आई विल डू सिंपली व्हाट, यहाँ पर आओ, इस फॉन्ट को डिलीट कर दो. यहाँ से आपने डिलीट कर दिया. अब ये फ़ॉन्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा एंड देन इट विल नॉट, यहाँ से चला गया है फ़ॉन्ट. ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर देखो ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो फ़ॉन्ट जा चुका है हमारा यहाँ पर. अब हम अगर उसे ढूंढेंगे तो वो हमें नहीं मिलेगा. ठीक है, देखो यहाँ से जा चुका है वो, तो दैट फॉन्ट हैज़ गॉन नाउ. सो आई नीड टू सेलेक्ट सम अदर फॉन्ट एंड देन आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द फॉन्ट. इस तरीके से हम फॉन्ट्स को आया है मेरे पास यहाँ पे. सो ऑल नोटिफिकेशन यू कैन गेट
इन दिस, ये नोटिफिकेशन आइकन होता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एक्शन सेंटर पे, सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन आएगा। तो हम बैक चलते हैं, यहाँ से कंट्रोल पैनल के अंदर हैं हम इस टाइम पे, एंड नाउ आई विल शो यू हाउ वी कैन यूज़ माउस। ओके, माउस फीचर हमने लास्ट टाइम यूज़ करा था, अब हम फिर से इस बार यूज़ करके देखेंगे माउस को हम इसमें कैसे यूज़ करते हैं। सो जस्ट क्लिक ऑन इट, सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा अभी प्राइमरी बटन जो है वो लेफ़्ट वाला है, जो अभी मेरा माउस वर्क कर रहा है। इफ़ आई वांट टू मेक इट एज ए प्राइमरी, राइट वाले को अगर मुझे प्राइमरी करना है तो बस मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये मेरा राइट वाला बटन विल बिहेव एज अ प्राइमरी बटन। आई नीड टू जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई। अब देखिए अप्लाई मेरा काम नहीं कर रहा है लेफ़्ट से, ठीक है, सो आई नीड टू क्लिक वाया लेफ़्ट बटन, और ये अप्लाई हो गया है और अब मेरा लेफ़्ट वाला वर्क करेगा। बट आई डोंट वांट टू यूज़ राइट साइड बटन एज अ प्राइमरी बटन, आई वांट बैक, तो मैं इसको वापसी से बैक रिप्लेस कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। चलो ठीक है, दैट्स फाइन। तो आपको ये पता ही होगा, और अगर नहीं पता था तो इट विल बी क्लियर नाउ। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है डबल क्लिक स्पीड। सो जैसे कि आपने देखा होगा, अभी हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं। ओके, इसको भी मिनिमाइज़ करो। सपोज़ कोई फ़ोल्डर है मेरे पास, एनी फोल्डर इज़ देयर, दिस इज़ अ फोल्डर, राइट। इस फोल्डर पे मैं जब डबल क्लिक करता हूँ तो ये फ़ोल्डर खुल के मेरे पास आ गया, राइट। सो जैसे ही मैंने डबल क्लिक करा ये फ़ोल्डर ओपन हो गया, राइट। सो कितनी तेज़ इस पर डबल क्लिक करूँ कि ये ओपन हो, उसकी स्पीड मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर सकता हूँ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। सो इफ़ आई वांट कि बहुत तेज़ डबल क्लिक करूँ तभी खुले, तो कोई अगर हल्के हल्के डबल क्लिक करेगा तो उस पर नहीं खुलेगा। सो आई विल जस्ट मूव इट हेयर, अप्लाई। अब क्या है, अगर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ स्लो, मतलब हल्के अगर डबल क्लिक कर रहा हूँ इट विल नॉट ओपन। सो देखो, तो ये नहीं खुला, डबल क्लिक करा मैंने, नहीं खुला, मेरे को इसको फास्ट करना पड़ेगा। सो नाउ इट हैज़ ओपन। ओके, अब ये खुला है। सो मैं इसको वापसी से नॉर्मल करता हूँ। अगर मैं स्लो कर दूंगा इसको तो स्लो पे आराम से करने पे ही ओपन हो जाएगा। अप्लाई कर दिया। अब अगर मैं इसको स्लो मतलब स्पीड से इसको 2 टाइम्स क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये देखो मैंने इसे बहुत आराम से ओपन करा है एंड दिस हैज़ ओपन। सो बट आई वांट टू कीप इट एज ए नॉर्मल, जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, आफ्टर दैट अनदर फीचर इज़ टर्न ऑन क्लिक लॉक। ये फ़ीचर हमारा क्या करता है, ये बेसिकली इसलिए यूज़ होता है, सपोज़ मेरे पास ये वाली फ़ाइल है एंड आई वांट टू ड्रैग। अभी मैंने इसको फ़ाइल को सेलेक्ट क्लिक करा और क्लिक करके इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, राइट। सो ये मेरे को बटन प्रेस करे रखना पड़ रहा है माउस का, एंड नाउ आई एम एबल टू ड्रैग इट, और मैं इसको जहाँ ले जाके छोड़ूंगा वहाँ पे ये रुक जाएगी। बट अगर मैं इस फीचर को एनेबल कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, तो इससे होगा क्या कि मैंने इसको क्लिक करा, ड्रैग करा और अब छोड़ दिया। यहाँ पे छोड़ने के बाद में देखिए ये फ़ाइल क्लिक करने पे लॉक हो गई है। अब मेरे को माउस को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, माउस बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने माउस बटन को रिलीज़ कर दिया है एंड नाउ आई एम ईज़िली एबल टू मूव इट एनीवेयर। अगर मेरे को ये फ़ाइल कहीं पे छोड़नी है तो आई विल जस्ट पुट इट एट दैट पोजीशन एंड क्लिक। ओके, क्लिक करते ही ये फ़ाइल छूट जाएगी। क्लियर है। ये ऑप्शन भी मुझे नहीं रखना है, मैं इसको वापसी से बैक कर देता हूँ। ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू। पॉइंटर्स पे आते हैं, नेक्स्ट टैब पे। पॉइंटर्स में अभी मेरा बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंटर ये वाला है, बट आई वांट टू चेंज इट समथिंग एल्स, कुछ डिफरेंट मैं इसका पॉइंटर चेंज करना चाह रहा हूँ। सो ब्राउज पे क्लिक करेंगे, सो यू कैन सी हाउ मैनी टाइप ऑफ आइकन्स ऑफ कर्सर आर अवेलेबल। सो आई कैन पुट वट एवर आई वॉन्ट। सपोज़ मैं इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, सो यू कैन सी अब ये वाला मेरा माउस का आइकन इट विल चेंज। बट हाउ विल आई डू इट, अप्लाई बटन पे क्लिक करो और अप्लाई पे क्लिक करते यू विल सी द आइकन हैज़ चेंज ऑफ माई माउस। ओके, इन द सेम वे आप डिफरेंट कोई सा भी स्टाइल अपना रख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। एरो बिजी वन, सपोज मैं ये वाला ले लेता हूँ, ओपन करो एंड क्लिक ऑन अप्लाई बटन, सो यू कैन सी नाउ इट इज़ स्क्रॉलिंग लाइक दिस। क्लियर।
सो हम यहाँ से अपने माउस के आइकन को चेंज कर सकते हैं. फ़िलहाल आई एम कमिंग बैक टू द नॉर्मल वन विच इज़ फाइन फॉर मी. अप्लाई एंड नाउ आई एम बैक टू द नॉर्मल. ओके. आफ्टर दैट पॉइंटर ऑप्शंस के अंदर आते हैं. यहाँ पे सेलेक्ट ए पॉइंटर स्पीड. पॉइंटर की स्पीड अगर मैं फास्ट कर दूंगा तो पॉइंटर बहुत तेज़ मूव कर रहा है. बहुत हल्का सा मेरे को माउस रोटेट करने पे, माउस ड्रैग करने पे, मूव करने पे, लेकिन ये पॉइंटर बहुत तेज़ भाग रहा है. ऑलराइट. तो अब ये उतनी तेज़ नहीं भाग रहा है. ठीक है. तो इट्स माई चॉइस कि मेरे को कितनी स्पीड इसकी रखनी है. ओके. ये एक ऑप्शन होता है जिसमें पॉइंटर बाय डिफ़ॉल्ट बटन पे मूव कर जाएगा जैसे ही कोई आप विंडो खोलेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये अनचेक है तो मैं अगर इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है, और अप्लाई कर देता हूँ. सो नाउ व्हाट यू विल सी व्हेन आई विल ओपन सपोज कंट्रोल पैनल, CON कंट्रोल पैनल पे आया. ठीक है. और कंट्रोल पैनल पे आके मैंने यहाँ से कीबोर्ड पे क्लिक करा तो मेरा माउस का कर्सर आप इफ़ देखो तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इस बटन पे आ गया. ठीक है. अपने आप ही आ गया. जो भी डिफ़ॉल्ट बटन होगा उस पर आ गया. मैंने इस पर कुछ नहीं करा, ये अपने आप ही आ गया. सो इन द सेम वे कैंसिल क्लिक करो. अभी अगर मैं अभी माउस वाला ही टैब खोलता हूँ तो ये तो चलो खुला हुआ था पहले से. रिकवरी का खोलो. रिकवरी में कोई पॉपअप नहीं खुला. चलो बैक जाओ. सो आई एम अगेन ओपनिंग द कीबोर्ड वन. या साउंड वाले को देख, नहीं साउंड में भी कोई बटन नहीं होगा. आई वांट जिस एक ऐसी विंडो ओपन करना चाह रहा हूँ जिसके अंदर कोई बटन्स हों. ठीक है. तो उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट बटन होगा, ठीक है, उस पर हमारा माउस ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा. तो कीबोर्ड पे क्लिक करते ही आप देखो मेरा माउस अपने आप यहाँ पे बटन पे आ गया. तो ऐसे ही ये सेटिंग हो जाएगी. बाय डिफ़ॉल्ट बटन पे पहुँच जाएगा. फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको फ़िलहाल हटा दूँगा. ओके. विजिबिलिटी. इफ़ यू विल सी हियर डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल. जैसे ही मैं इसको चेक करूँगा अब आप देखो मेरे पॉइंटर की ट्रेल बनती हुई जा रही है. ठीक है. शॉर्ट या लॉन्ग कितनी रखनी है डिपेंड्स उसका. अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ तो बहुत छोटी सी बन रही है, ये यू कैन सी. और अगर मैं इसे लॉन्ग कर देता हूँ तो बहुत लंबी ट्रेल तक इसकी बन रही है. लेकिन मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है तो आई एम अगेन रिमूविंग इट. ठीक है. ये वाला आप खुद प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखिएगा इसको. ये सिंपली कंट्रोल की के साथ जब आप प्रेस करोगे तो ये लोकेशन बता देगा आपके पॉइंटर की. राइट. और इसकी आपको ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं पॉइंटर्स के अंदर. इसके बाद अनदर थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज़ सो द नेक्स्ट थिंग इज़ फाइल एक्सप्लोरर विंडो. इसके अंदर हम एक सेटिंग कर सकते हैं. हम इसको क्लोज़ कर देते हैं फ़िलहाल. अब ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ नोन एज़ फाइल एक्सप्लोरर. हमने इस पर क्लिक करा. एक और सेटिंग आपको बताने जा रहा हूँ. सो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट इसको मैक्सिमाइज़ करो विंडो को एंड कम ओवर हेयर. व्यू टैब पे आओ, क्लिक करो, ऑप्शंस पे आओ. व्हेन यू विल कम हेयर ऑप्शन टैब पे यू विल गेट दिस विंडो. ठीक है. अभी क्या होता है जो भी हम फ़ोल्डर को ओपन करते हैं तो हमें उसको खोलने के लिए क्या करना पड़ता है, डबल क्लिक करना पड़ता है आइटम को ओपन करने के लिए, उस फोल्डर को ओपन करने के लिए. ठीक है. या कोई फाइल भी है तो मुझे उस पर डबल क्लिक करना पड़ता है उसको ओपन करने के लिए. बट आई वांट इट शुड डन ओनली इन अ सिंगल क्लिक. सो हाउ विल आई डू दैट. आप यहाँ पे क्लिक कीजिए सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम. ठीक है. और जैसे ही आप उस आइटम पे लेके जाएंगे उसे पॉइंट करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो एक सिंगल बटन पे ही आपकी फ़ाइल सेलेक्ट हो जाएगी और खुल भी जाएगी. अप्लाई कर दीजिए और अब हम इसको देखते हैं. ओके कीजिए. सपोज़ मैं जाता हूँ न्यू फोल्डर पे तो देखिए अपने आप ही ये सेलेक्ट हो गया. मैंने कोई क्लिक नहीं करा. एंड नाउ इफ़ अगर मैं एक सिंगल क्लिक करता हूँ ये दिस फाइल हैज़ ओपनड अप. ये फ़ाइल खुल गई है. क्लियर. सो दिस इज़ हाउ अवर दिस फीचर वर्क्स. ठीक है. मुझे वापसी से जाना है वहाँ पे उस विंडो को खोलना है. व्यू पे क्लिक करा, क्लिकिंग ऑन ऑप्शन बैक एंड अगेन डबल क्लिक. मेरे लिए डबल क्लिक ही अच्छा है, मुझे डबल क्लिक की ही बेटर लगता है. सो अप्लाई एंड ओके. ओके. सो दैट्स फाइन नाउ फॉर मी. तो ये था आपका एक अनदर फीचर जो था इसका. ऑलराइट. सो इसके बाद एक आता है पावर ऑप्शन एंड हाइबरनेट मोड. पावर ऑप्शन के अंदर आपका स्लीप मोड भी होता है, हाइबरनेशन मोड होता है. सो इसको हम अभी आपसे क्लास में डिस्कस कर लें.